हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होके एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे, उस टाइप ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, these are some of the example of contact force. And what is non-contact force? When the force exert between two objects but the object is not in contact with one another, that type of force is called non-contact force. Okay, and the example is magnetic force, gravitational force, electrostatic force. Okay, tell me, here is the magnet. Here is the magnet and here the iron nail. Is it okay? Yes, sir. I have also told you about pull and push. Is it okay? First tell me कि here is the magnet, that means there is a magnetic force exerted on the iron nail. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And we all know that magnetic force is a type of non-contact force. That means for the existence of this magnetic force, there is no contact between the magnet and the iron nail. Is it okay? Yes, sir. Vinas Kumar. Shall I repeat? Shall I repeat? Your Yes, sir. voice is not coming, Avinas. Okay. What I said? This is the magnet and this is the iron nail. And between magnet and the iron nail, the force exert is called the magnetic force. And for the existence of this magnetic force, there is no need of contact between the magnet and the iron nail. Okay, so this force is called non-contact force. Now tell me, is this force, that means is the magnetic force is a pull or push? Pull. 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 Yes, sir. What is the meaning of pull? Can anyone tell me? अपनी ओर खींचना. अपनी ओर खींचना. Attract करना अपनी ओर. Pull. Okay, pull means the direction of the force is towards the body toward the body which applied the force, and in the push the direction of the force is away from the body which applied the force. Okay, we all know that this magnet will attract this iron nail. Okay, and this magnetic force is exerted by the magnet. So the source of the force is magnet. Magnet is the source of force and the direction of the force is towards the source. That's why magnetic force in the case of magnet and the nail is in nature. Is it okay? Sachin? Sachin? Yes, sir. समझ में आया?
Yes, sir. देखो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, जहां से, सबसे पहले ये बताओ कि इस मैग्नेटिक फोर्स का सोर्स क्या है, मैग्नेट, और इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, टुवार्ड्स द सोर्स है। और जब कोई फोर्स का डायरेक्शन टुवार्ड द सोर्स हो, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल फोर्स बोलते हैं या पुल बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब एक चीज बताओ, सपोज करो एक मैग्नेट है, और हम लोग सब जानते हैं मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, कि नहीं? साउथ एंड नॉर्थ। यस। मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। सिमिलरली इसको मैग्नेट 1 मान लेते हैं, अब इसको मैग्नेट 2 मानो, ठीक है। सपोज कि ये इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है। नाउ टेल मी, these two magnet, Sir. these two magnet Yes, sir. will exert a force on each other, and this force is nothing but the magnetic force. Now tell me, in this case, a magnetic force is pull or push? Sir, push force. Push force. पुश Sir, push force. रिपील करेगा। In this case, the source is the magnet, and Yes, sir. the magnet will exert a magnetic force towards itself on the nail, and that's why in this case the force is in nature. But same in this case, the source is the magnet, and it exerts a push force on the another magnet. Why? क्योंकि सर सेम डायरेक्शन है। Not the same direction, because सेम डायरेक्शन रिपील करता है। the pole of this magnet is in the same side. That's why same pole will repel each other, and for repulsion the direction of the force that is exerted by the source is away from the source, and when the force exerts away from the source, that type of force is called the push force. So we can say that magnet can exert a pull force or a push, depend on Its the direction of depend on the object on which the force is exerted. If the polarity is changed, suppose this is north and this is south. This is north, this is south. In this case, the direction of the force is toward the source. Yes, sir. Okay. Is it okay? yes, sir. One thing, tell me, देखिए देखो यहाँ पे गौर से देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट इसको इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता हो और ये भी इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करता हो, तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा ना। Yes, sir. तो अब आप हमको बताओ कि ये फोर्स हमने क्या बोला था, पुश फोर्स, और पुश फोर्स का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द सोर्स। Yes, sir. क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल जब एक साइड होगा, क्या मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? Yes, sir. नहीं करेगा। ये एक दूसरे So को north, south. देखो यहाँ पे साउथ इधर है, साउथ इधर है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है।
इज इट ओके? समझ में आया कि नहीं? Yes. Yes, sir. ये एक दूसरे को क्या करेगा? देखो, ये जब इस पे फोर्स लगेगा ये इस साइड जाएगा, और ये जब इस पे फोर्स लगेगा ये इस साइड जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. समझ में आया कि नहीं? आ गया। सॉरी, ये इस साइड जाएगा, ये मैं गलत बता दिया, ये इस साइड जाएगा। हाँ सही तो बताया, जब ये इस पे फोर्स लगा ये इस साइड जाएगा, और Yes, ये sir. जब इस पे लगा ये इस साइड जाएगा। यही होगा ना? हाँ, दोनों एक Yes. दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इज इट ओके? लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स पुल फोर्स भी हो सकता है या पुश फोर्स भी हो सकता है, डिपेंड करेगा दोनों ऑब्जेक्ट के सोर्स के ऊपर। इज इट ओके? Yes. समझ में आया कि नहीं? Yes. अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हर एक टाइप ऑफ फोर्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा। इज इट ओके? और इसका हम पहला एग्जांपल देखे थे मस्कुलर फोर्स। ठीक है, कोई बता सकते हो मस्कुलर फोर्स होता क्या है? सर हाथ से कोई का सर हाथ से कोई फोर्स लगाते हैं उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखो मस्कुलर फोर्स वैसे फोर्स को बोलते हैं, ठीक है, जिस फोर्स में क्या हो, फॉर एग्जांपल आप वॉक कर रहे हो, जब आप वॉक करते हो तो क्या होता है? आपका जो पैर है वो ऊपर नीचे करता है। हाँ? Yes, sir. Yes. Sir. Yes. उस ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? जिसमें क्या होता है, जो हमारा मसल है उसमें एक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के जरिए क्या होता है? मूवमेंट होता है कि नहीं? तो जहां पर भी मसल इन्वॉल्व हो तो वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ये क्या है? मस्कुलर फोर्स है। इज इट ओके? फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी फूड को अपने मुंह अपने माउथ में इंजेस्ट करते हैं, ये फूड क्या होता है? आफ्टर प्राइमरी डाइजेशन दिस फूड will goes to the stomach, okay, with the help of food pipe, और food pipe के मदद से क्या होता है? ये जो भोजन होता है हमारे माउथ से कहाँ जाता है? हमारे स्टोमच में। ठीक है, तो हम लोग Yes. जानते हैं कि फूड ये इस फूड का मूवमेंट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप क्या करता है? कॉन्टिन्यूअस, जैसे यहाँ पे मेरे हाथ को देखो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस तरह से, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, और इसी कारण से क्या होता है? फूड जो है फूड पाइप से स्टोमच में जाता है, और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? Muscular. जिसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? बिकॉज द मस्कुलर फोर्स, और ये मस्कुलर फोर्स कौन एक्सर्ट करता है? द फूड पाइप, द मसल ऑफ द फूड पाइप। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कुआं देखियो, Yes, Yes, sir. sir. कुआं से पानी को खींचते हैं विद आवर हैंड,
ठीक है, हमारा हाथ क्या करता है, एक टाइप ऑफ मसल एक्सर्ट करता है। जैसे मैं अभी इस पेन को पकड़ा हूं, ये क्या रहा है, इस पॉइंट पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा बाय आवर मसल्स। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? हाँ जी। यस सर। हाँ, Yes, sir. अब यस देखो, सर। जो एनिमल होता है वो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को लेके एक दूसरे से दूसरे जगह जाता है, बैलगाड़ी नहीं। ये क्यों होता है? Yes, क्योंकि sir. उस एनिमल के द्वारा एक मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है। इज इट ओके? क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स। बताने की जरूरत है? तो फ्रिक्शन फोर्स बताने की जरूरत है? ये सब कैसा फोर्स है? सब कांटेक्ट फोर्स है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? The external force that opposes relative motion. That cause the relative motion. Okay, Yes means sir. for the existence of the friction force there must be the contact. For example, this is the block and this is the surface, and if we apply a push force, okay, if we apply a push force, then because of this force the block will move, okay, and because this block is in contact with the surface, so because of this interlocking between the block and the surface there is a force, and the direction of this force is opposite to the direction of motion, okay, and this force is nothing but the friction force. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. yes, sir. Okay, can anyone tell me why this friction force exert? Arnab Kishore, why the friction force exert? हाँ, अगर हम लोग किसी को करते हैं तेरे में लेट होता क्या चीज? Why this friction force exert? है। अनम्यूट करके बोलो। हाँ बोलो अब। सर हाँ, ये तो when you apply anything on the tunnel, मेघा कुमारी, why this friction force exert? मेघा, Sir, due to irregularity surface. ड्यू टू इरेगुलरिटी, और इरेगुलरिटी के कारण क्या होता है? इंटरलॉकिंग होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस Yes sir. irregularity and this interlocking the friction force will exert. Okay, Jyoti Kumari, tell me on which factor this friction force will depend. Surface contact. Not, no surface contact. Surface contact is one of the primary conditions for the existence of the friction force. I am asking you on which factor this friction force will depend. Pandit ji, Pandit ji, Avinash, Pandit ji, Soumya, Smoothness. no.
रहेगा Nature of surface. yes friction force will depend on the nature of the surface okay उस सरफेस का नेचर कैसा है ठीक है अगर वो कम रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा अगर ज्यादा रफ है फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा Yes, sir. और दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता हो Sir, irregularities. इरेगुलरिटी यस नहीं इरेगुलरिटी तो वो तो हो गया ना नेचर ऑफ द सरफेस वो तो cause of Interlocking. इरेगुलरिटी के कारण ही इंटरलॉकिंग होता है Sir, object. Sir, weight. क्या Object. क्या ऑब्जेक्ट Sir, weight के डिपेंड वेट पर वेट मतलब नॉर्मल फोर्स के ऊपर किसके ऊपर नॉर्मल फोर्स Normal. फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स अब चलो तीसरा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हुआ नॉर्मल फोर्स कोई बता सकते हो नॉर्मल फोर्स होता क्या है Sir, to increase friction. होता क्या नॉर्मल फोर्स क्योंकि हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन फोर्स विल डिपेंड ऑन द नॉर्मल फोर्स नाउ टेल मी व्हाट इज नॉर्मल फोर्स Sir, to increase friction. this is one of the condition that if you want to increase the friction then you have to increase the normal force but what is normal force Sir, the force applied by Earth is called normal force. no the force The applied force, by the force which eject to prevent object. the force that exert by the earth that is called the weight is it okay and the magnitude of this weight force is nothing but equal to mg देखो suppose करो this is your table is it okay this is your Sir, table and on the table suppose your book is there okay yes. means this book is in contact with this table so a perpendicular force that will exert on this book by the table what I said a perpendicular force suppose देखो इस बुक को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं दूर दूर और ये टेबल को यहाँ पे अब मैंने क्या बोला एक परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा जो कि बुक पे एक्सर्ट होगा किसके द्वारा बाय द टेबल एंड दिस परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड Normal force. force इज इट क्लियर और सिमिलरली ये बुक क्या है इस टेबल के कांटेक्ट में है तो ये टेबल भी क्या करेगा इस बुक के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का एक दूसरा नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर टेबल के ऊपर और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा सेम होगा. तो हमेशा याद रखना जो भी नॉर्मल फोर्स होता है ये पेयर में एग्जिस्ट करता है Is it clear? मतलब
ये टेबल इस बुक पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा और Yes. उतना ही मैग्नीट्यूड का नॉर्मल फोर्स ये बुक इस टेबल पे लगाएगा और क्या होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ टेल मी व्हाट इज टेंशन फोर्स? टेंशन फोर्स जानते हो? No, sir. नहीं जानते हो? क्यों नहीं जानते हो? देखो, मानो ये एक रस्सी है, ठीक है? इज इट ओके? मान लो सचिन इस रस्सी को इधर खींच रहा है, ठीक है? और अर्णव इस रस्सी को इधर खींच रहा है। इज इट क्लियर? Yes. अब देखो, एक चीज ऑब्जर्व करो, इस रस्सी में क्या होगा जब आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट इस रस्सी को खींचोगे, तो इस रस्सी में क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है? इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, एक रबर लो, ठीक है, जो मिठाई के डब्बा में लगा होता है, उस रबर को दोनों साइड से स्ट्रेच करो, ठीक है? अब क्या ऑब्जर्व करोगे, ज्यादा स्ट्रेस करने पे रबर कहीं एक पॉइंट से ब्रेक कर जाता है। Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ब्रेक क्यों करता है? क्योंकि जिस पॉइंट से ब्रेक हुआ, मानो इस पॉइंट से ब्रेक हुआ, इस डायरेक्शन में सचिन के द्वारा एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इस रोप में क्या हुआ, एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स, एंड टेंशन फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। सिमिलरली जो मैग्नीट्यूड इसका होगा वही मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस फोर्स का होगा, जो किसके द्वारा क्रिएट होगा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स बोलेंगे। और इस टेंशन फोर्स के कारण क्या होता, अगर ये इस रोप के जो स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा एक्सीड कर जाए, ये रोप इस पॉइंट से क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. कभी देखना, जब कोई चीज को स्ट्रेच करते हो ना, तो एक पॉइंट होता है जहां पे पतला हो जाता है, और ज्यादा स्ट्रेच करते हो, जिस पॉइंट से पतला होता है वही पॉइंट से ब्रेक कर जाता है, ठीक है? जिस पॉइंट पे वो रबर क्या पतला हो रहा है ना, उसी पॉइंट पे क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, किसमें, रोप में। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। इज दिस क्लियर? Yes. टेंशन फोर्स भी क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. बता दो तो ड्रैग फोर्स क्या होता है? सचिन, Yes, sir. व्हाट इज ड्रैग फोर्स? Force exerted by सचिन, fluid. सचिन, Yes. व्हाट इज ड्रैग फोर्स? तो नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? तो नहीं पता है सर। पता क्यों नहीं है? जब मैं फ्रिक्शन पढ़ा रहा था तो ड्रैग फोर्स के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. सचिन, यस सर। जब मैं फ्रिक्शन पढ़ा रहा था ड्रैग फोर्स के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? यस। पंडित जी,
पंडित जी, यस सर। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड जी, सर कोई भी सर लिक्विड भी कोई होता है उसे फ्लूइड कहते हैं। सिर्फ लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं? सर लिक्विड फोर्स। लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं? ज्योति, सर लिक्विड फोर्स। ज्योति, Yes, sir. फ्लूइड क्या होता है? एक लिक्विड हुआ, दूसरा Gas. गैस। यस, फ्लूइड क्या होते हैं? लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हमने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में क्या एक्सर्ट होता है? फ्रिक्शन फोर्स। सिमिलरली क्या होता है, जब एक फोर्स क्या हो, जब लिक्विड के बीच में, एक ऑब्जेक्ट लिक्विड हो दूसरा सॉलिड हो सकता है, या दोनों लिक्विड हो जाए, इस केस में जो फोर्स एक्सर्ट करता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग बाइक से कार चलाते हैं, सपोज करो ये मेरा कार है, इज इट ओके? सपोज दिस इज माय कार। जब हम लोग इसको रन करते हैं, एक एयर क्या करता है? एक फोर्स एक्सर्ट करता है इस कार के ऊपर, एंड एयर इज अ फ्लूइड। और जो ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एयर के द्वारा इस कार के ऊपर, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स बोलते हैं। इज इट ओके? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. ऐसे फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? मोशन को रेजिस्ट करता है। सिमिलरली ड्रैग फोर्स क्या करेगा? जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किस में हो? फ्लूइड में हो, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है। इज इट ओके? यस समझ में आया कि नहीं? सर आ गया। Yes, sir. आ गया? तो हम लोग आज नॉर्मल फोर्स के बारे में देखे, मस्कुलर फोर्स के बारे में देखे, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में देखे, टेंशन फोर्स के बारे में देखे, ड्रैग फोर्स के बारे में देखे। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. किसी कोई डाउट है? हाँ, किसी कोई डाउट है? सर टेंशन थोड़े एक बार और बताइए ना। Of course, yes. पंडित जी, आप क्या करना, घर में मिठाई आता है, यस सर। हाँ, उसका रबर होगा। यस सर। रबर को दोनों पॉइंट से स्ट्रेच करना इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों पॉइंट से एक फोर्स लगाना और अपोजिट डायरेक्शन में। इज दिस ओके? तो जब आप क्या करोगे, इस रबर के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, तो सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करोगे? एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एज कंपेयर टू दूसरा पार्ट ऑफ रबर क्या होगा? वहां पे जो एरिया है इस फोर्स का वो कम देखने को मिलेगा। ऐसा होता है? यस ये होता है। तो क्या होता है, जब आप ये फोर्स लगा रहे हो ना दोनों साइड से, तो इस रबर में इस फोर्स के कारण एक टेंशन क्रिएट होता है, और इसी टेंशन के क्रिएट होने के कारण क्या होता है, जो मानो इस साइड में और इस साइड में अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, और इसी टेंशन के कारण क्या होता है, जब और ज्यादा फोर्स इंक्रीज कर दो, तो जिस पॉइंट पे एरिया कम होती है उसी पॉइंट पे ये क्या होता है? ब्रेक कर जाता है। तो ये क्यों ब्रेक कर रहा है? तो इस थ्रेड में क्या हो रहा है, इस रबर में क्या हो रहा है? एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो कैसा फोर्स है? एक टेंशन फोर्स कहलाता है। नहीं आया समझ में? सर आ गया। तो अभी देखना मम्मी लोग क्या करती है, मकर संक्रांति में लाई बनाया जाता है, Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. उसमें देखो
गुड़ को क्या बोलते हैं, उसको शक्कर को जो गर्म पानी में किया जाता है, उसके बाद मम्मी उठा के ऐसे ऐसे चेक करती है कि नहीं करती यस है? सर, जब Yes, ऐसे sir. यस ऊपर सर, स्ट्रेच करती है, क्या होता है, उसके बीच में देखता हुआ क्या वो लेंथ इंक्रीज होते जाता है और एक पॉइंट पे क्या होता है, वीक हो जाता है और वहां ब्रेक कर जाता है। क्या होता है, जो मम्मी क्या करती है, जो ये फोर्स लगा रही है, इस फोर्स के कारण उसमें क्या होता है, एक टेंसाइल फोर्स क्रिएट होता है। इज इट ओके? और यस इसी को हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स, जो कि थ्रेड में क्रिएट होता है। या जब हम किसी भी चीज को खींचते हैं तो उसमें टेंसाइल फोर्स क्रिएट होता है। इज इट ओके? यस Yes. किसी का डाउट?